ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਲਹੈ, ਜਿਸ ਦਰ ਕਾਰਣ ਫਿਰਾਂ ਉਦਾਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗੇ, ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ 10 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਵਲ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਬਿਆ ਦਬਿਆ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਬੋਝ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, 10 ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਣ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਜਿਤਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੂੰਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਨਾ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 3 ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਨ।
सतगुर दी बाणी दा बाण ऐसा लग्या, तीर ऐसा लग्या, शब्द मन नूं छोएगा, मन नूं चोट करेगा। जितने चिर तक शब्द ने मन नूं चोट नहीं की थी, समझ लो इसने सुनिया ही नहीं है। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहेगुरु वाहेगुरु, ये वक्ता बने। मन स्रोता बने, पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन की सुनन की आदत ही नहीं, कि जब सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग दे बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं। सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहते ने, दोहराते हैं, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहते ने, गुरु का शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलता, कौड़ा नहीं बोलता, फिक्का नहीं बोलता, व्यर्थ नहीं बोलता। जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनों भी बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नूं भी मैं बयान नहीं कर सकता, गूंगा हो गया। इक्को ही पीड़ा है। भगत चाहते ने बनी रहे, बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जिहड़े कोई अभ्यासी होणगे ते शब्द चोट कर गया होवेगा, ਉਹਦਾ एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता तो ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे। ਉਹਦੀ ਇਹ उमंग पैदा हो जाती है, ਉਹਦੀ ਇਹ तड़प आती है। ਇਹਨੂੰ एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिज कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु, हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगों मैं फरियाद करदा रवां, नहीं मिलता ना मिल। कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च भी आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उस भी आनंद है, उस भी रस है। इक्को एक पीड़ा है जिहदे च महा रस है। कबीर कहते मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज करदा। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहते हैं, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी 2 वक्त कुरान की तलावत करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात को ज़कात देंदा है, रमज़ान के महीने रोज़े रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, तुरा मन नादानम के यजदा शनास। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, तो खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान की तलावत भी झूठ, तेरे रमज़ान के महीने च रखे रोज़े भी झूठ। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामज़्ज़त का रहा दिल खराश। तू वो कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नूं चोट पहुँचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नूं जोड़दा हुंदा है, तोड़दा नहीं हुंदा। तू ते कदम कदम दे उत्ते दिल तोड़े ने। तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नूं, अंदरों कुछ होर। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवर, न शिकमे दिगर दर्दा हाँ ने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हाँ, मनुख मनदे हाँ जो जबान दे च, वही दिल दे च,
जो दिल दे च है उही जबान दे च है। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, ये कच्चे ने। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर आउंदा है, अंदरों कुछ होर आउंदा है। हुण मैं अर्ज करा, चलाक मनुख हो सकता है संसार दे च बड़ी सफलता प्राप्त कर लवे, लेकिन धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा। भोला मनुख धर्म की दुनिया च बहुत अगे लंघ जाएगा, हो सकता है संसार दे च पछड़ जाए। ये भी मैं अर्ज करते हैं। भगत कबीर कहते हैं, चतराई ना चतर भुज पाई। चतराइयां नाल नहीं मिलता, चलाकियां नाल नहीं मिलता। चतराई ना चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगर। उते भोले भा नाल मिलता। बावरा भोला, कबीर कहते ऐसा शब्द का तीर लगे है, भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। ईरानी सूफी संत हाफिज कहता है, सद जां फिदाए आं के जबानश दिलश यकेस्त। हज़ारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां जिहदी जबान ते दिल एक है। जो कहता है वही दिल दे च है, और जो दिल दे च है वही कहता है। जो बाहरों है वही अंदरों है, जो अंदरों है वही बाहरों है। हर मनुख दे दो दो रूप ने। ये बाहरों मनुख दिखाई दे रहे, अंदरों नहीं। इस वास्ते असी किसी कुत्ते नूं नहीं कहते भी ए कुत्ते तू कुत्ता बन जा, ए गऊ तू गऊ बन जा, ए शेर तू शेर बन जा, ए खोते तू खोता बन जा। ऐसा कहने की लोड़ नहीं, होते है नहीं खोते, पर रोज़ कहना पैंदा है बंदे तू बंदा बन जा, ए इंसान तू इंसान बन जा। क्यों? खोता खोते की तरह जी रहा है, शेर शेर की तरह जी रहा है, गऊ गऊ की तरह जी रही है, मनुख मनुख की तरह नहीं जी रहा। फिर किस तरह जी रहा है? करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। कबीर कहते भोला हो गया, अंदरों बाहरों एक हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। कन्ना तो भी बहरा हो गया, हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे अंदर जान ही नहीं देंदा। देखो कोई साडे घर दे कचरा सुट जाए, गंदगी सुट जाए, असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं, पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साडे विच सुट जाए, असी बड़े शौक नाल सुनी है नहीं, फिर ये सावधानी नहीं है। कबीर कहते मैं सावधान हो गया, मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं। गल खत्म। पाँव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहणे ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टुट गए ने, यदी भटकना मिट गई है। मेरा चित न चलत, नहीं चलता। पता है चंचल दे अर्थ की ने? चल 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 चल, हर वक्त ही चलता है। तन बैठा है तां भी मन चलता ही रहिंदा, चंचल है। चल चल चलता है, चलता है, चलता है, रुकदा ही नहीं, किते टिकदा ही नहीं। स्वामी रामानंद बसंत राग दा शब्द कहते ने, मन मेरा पिंगला हो गया। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोआ बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लैंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, बई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले कितों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे? फिर दूजी गल करते हैं मन नूं एकाग्र करके बाणी पढ़ो। यकीन जानो इन्हों मन की समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकाग्र हो। पहले कितों एकाग्र हो जाएगा?
ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਲਟਾ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਪੈਰ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤਲਬ ਕਾ ਮੁਝ ਪੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੇ ਦਰ ਸੇ ਅਬ ਉੱਠ ਕਰ ਕਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਟੂਟੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਤलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकता, गूंगा, समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिस्मे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइए ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर साज ते नहीं गाया जा सकता। ये वो राग है, ये वो गीत है जिहदे वास्ते विशेष वाजा चाहिए, विशेष साज चाहिए है। भाव हर दिल दे च नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल की बनतर बनानी पैंदी है सतसंग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु का शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नाम सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज़्यादा उम्र वाले 80-90 साल के असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखा, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहते हिंदी संवेदना। ऐसे मनुख के अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नूं छोटी दी छोटी घटना नूं भी बहुत वड्डे रूप दे महसूस करता। संवेदना असी भी देखते हैं बुढ़िया, असी भी देखते हैं बीमारां, खुद भी बीमार होंदे हैं। असी भी मुर्दियां नूं देखिया होवेगा,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਸੀ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बड़ी पद प्रतिष्ठा से, शक्ति से, कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे, निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु का शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनूं इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर पर निराश नहीं, उदास नहीं, ये कोई गहरा सरोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट की होवे। दूसरा, ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं, गुस्ताखी माफ, कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा, अजे संसार तो भी इसनों कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं तो मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। प्रथम, सतसंग दे आउंदियां आउंदियां एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया, निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया, निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो ये संबंध मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहते ने, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बेन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होता, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, संसार बन रहा है, मिट रहा है, मनुख जम रहे ने, मर रहे ने, जीव जम रहे ने, मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे, मनुख छेती उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध भी मैं गालिब दी नज़म थोड़े सामने रखा। वो कहता है, बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नूं कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणियां दी खेड। बाजीचा इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। दिन रात ये बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया, शामी खा लिया, फिर सौ गया, फिर दूजे दिन फिर वही कुछ किया है जो कुछ रोज़ करते हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, तख्ते सुलेमानी सिंघासन, जिहदे लई दुनिया कितने पापड़ बेलदी है। कोई पिंड का चौधरी बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई MP बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोग बेलते हैं। कहते बच्चियां दा तमाशा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नूं कहंदे ने, वड्डा तख्त उन्हों औरंग कहंदे ने, ए छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने, मसनद। गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नूं ये मसनद बख्शिश की सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नूं मसंद कहंदे हैं। फारसी का लफ्ज़ है शुद्ध मसनद, यह मसनद है जिसते धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। इनू फारसी दे औरंग कहते हैं। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिसते एहलकार बैठन
ਮਸਨਦ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਉਸਦਾ ਮਯੂਦੀਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਵੀ ਲੋਕ, ਗੁਣੀ ਲੋਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਖੱਲੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਪਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਰੱਖਿਆ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਬਰ ਉਸ ਦਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਜੋ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਏ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੇ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ। ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਢਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਗਲਾ ਸੀ, ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਰਮ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਯੂਦੀਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਤਖਤ। ਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲੁਸ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੁਰਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਜ਼ੇਬਨ ਤੁਰਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਬਾਇਦ ਫਰੇਬ। ਐ ਮਯੂਦੀਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਮਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਰਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬ ਮਕਰੋ ਰਹਾ, ਮਰਾ ਚਾਰਾ ਸਾਜ਼ੀ ਬ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ। न ज़ेबत तो रा नाम औरंगज़ेब कि औरंगज़ेब न बायद फरेब। महाफरेबी हैं, तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी ज़बान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। तू तो मनुख ही नहीं है, तू तो इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये जुर्रत उसनों जो है ऐसा आखे। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्होंने मसनद कहते हैं। पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी हुई, संगत ने मान सन्मान इतना दिता, इन्हां कोल हजम ना होया। इन्हां ने खुद गुरु होने का नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अगाह चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद का तो मतलब है जिन्हों तख्त मिले है, लेकिन सिख जगत दे अज गाल बन गई
किसी नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जाता है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद का मतलब है छोटा तख्त जिससे बैठे हैं। यह छोटा तख्त गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, भी संगत उच्ची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनाण, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ते संगत नूं ये देख सकन, संबोधन कर सकन, ते विचार का ज्ञान का गुरबाणी का सन्मान होवे, सत्कार होवे। ये गुरु अमरदास जी महाराज ने प्रथा जो है चलाई सी। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। गालिब कहता एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक। ये औरंग ये बादशाह का तख्त बच्चों का तमाशा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है अजाज मसीहा मेरे आगे। हज़रत ईसा दे मौजज़े कथावां ने कि हज़रत ईसा जिस बीमार दे सिर ते हथ रख देंदे सन वो तंदुरुस्त हो जाता सी। इतिहास है अंधे दे सिर ते हथ रखिया उन्होंने अखां मिल गईयां, और यह भी इतिहास है मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया वो जिंदा हो गया। गालिब चोट करता है, मुर्दे दे सिर ते हथ रखिया जिंदा हो गया, तो क्या वो फिर नहीं मरिया? तो जे फिर मर गया तो हज़रत ईसा भी बच्चों के तमाशे करता रहिंदा। मैं ये नाल भी सहमत नहीं, कुछ भी नहीं। ये रिदियाँ सिद्धियाँ भी कुछ नहीं। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद आखां आओ, गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। इतनी वड्डी अकल है, ये रिद्धि सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिन्हां कोल कुछ भी नहीं, ना पीर साईं कोल, ना सैयद कोल, ना पंडित महाराज कोल, सिख धक्के पे खांदे ने उन्हां कोल। ये पंडित महाराज, ये पीर साईं, ये सैयद साहब 2 दिन ही साडे मसले हल कर देणगे। उंज गुरुद्वारे आणगे, कथा कीर्तन सुणनगे, मत्था टेकणगे गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, उंज धागे तवीज़ां दे चक्करां च पए ने। तमाम पंजाबी दे अखबार भरे पे ने सारे। ये इंग्लिश के अखबारों च भी नहीं है, ये उर्दू के अखबारों च भी नहीं है। 3 अखबार उर्दू के इंग्लैंड के निकलते हैं। जंग निकलता है, नेशन निकलता है और सियासत निकलता है। मैं 3 च नहीं देखिया, ना ये पीर साईं देखिया, ना ये सैयद साहब देखिया, ना ये पंडित महाराज देखिया। सब पंजाबी के अखबारों से छाए हुए हैं। क्यों? सब सिख जाते हैं, सब सिख जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना तो पखंड है, जाते उन्होंने कोल ने। मैं गुरु नानक देव जी के 2 बोल थोड़े सामने रखते हाँ, तो फिर अगे चलां तो समाप्ति करा, समा हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज के बोल हमेशा चेते रखना। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। ऐ मेरे भरा भाई करके संबोधन करते, मतां किधर तुसी समझो किसी होर दे हथ च भी कोई शक्ति है। भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है। सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप। सब हर के वस है लाग सके न बिन हर के लाया। कुछ भी हरि तो बिना प्राप्त नहीं होता, ना वर ना सराप ना सुख ना दुख। जो कुछ भी आंदा है कर्मा अनुसार सब परमात्मा तो आंदा है, किसी तो कुछ नहीं आंदा। सब झूठ है, सब पखंड है। पर मैं एक दफ़ा अर्ज कर दिया, एक तंदुरुस्त बंदे नूं भी 5-4 डॉक्टर कह देन तेनू ये रोग है, तेनू एक रोग है, उहदा मन ते पकड़ लेगा। ये धागे तवीज़ जादू टोने करने वाले पहले कहते ने तेनू कुछ है, आ गल है, तेरे नाले घटना घटनी है, फिर कहणगे आपां दूर करांगे। धंधा है। और जिन्ने चिर तक मनुख वहम तो माद के चक्कर च पिया होया है, समझ ज़्यादा नहीं है, वो इन्हां चक्करां च पेगा। गालिब कहता है ऐ ईसा, ये जो तू अंधे नूं अखां दे दित्तियां, बीमार नूं तंदुरुस्त कर दिता, मुर्दे नूं जिंदा कर दिता, मैं तेरी इस सिद्धि तो भी प्रभावित नहीं। यह भी बच्चों का तमाशा है, कुछ भी नहीं है। जिसनों तू जिंदा किया फिर नहीं मरिया, तो जे फिर मर गया तो बच्चों के तमाशे तू भी करता रहा, एवें खेडां खेडदा रहा बच्चों के खिडौणियां दे नाल, रिद्धि सिद्धि खिडौणा। अकल महान होवे, मनुख इन्हां चीज़ों तो प्रभावित नहीं होंदा।
अकल चोट कर जाती है, मनुख सब कुछ तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, या फिर संसार चोट कर जाए, बहुत वड्डी चोट कर जाए। बड़ा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया, बड़ा समर्थ सी बड़ा कमज़ोर हो गया, बड़ी मान प्रतिष्ठा सी बड़ी बेइज्जती हो गई, सरेआम पग ले गई। चोट खा के मनुख निराश हो सकता है, उदास हो सकता है। हुण ध्यान नाल सुनना, समाप्ति करा। निराश मनुख, उदास मनुख तीन तरह का फैसला कर सकता है। उदास ते निराश भी तीन कारणों करके होवेगा। शब्द चोट कर जाए, अपनी अकल चोट कर जाए, या संसार तो कोई चोट खा जाए। चोट खादा होया मनुख निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। निराश ते उदास फिर तीन तरह का फैसला करेगा। इनू अध्यात्मी पुरुष इंज कहते हैं, आत्म क्रांति, आत्म हत्या, आत्म विस्मृति। खुद नू बदलना, खुद नू खत्म करना, खुद नू भुलाना, इन्हां तिन्हां च एक काम जरूर करेगा। आत्म क्रांति, शब्द तो जिसने चोट खाधी है, आत्म क्रांति खुद नू बदलेगा। कहेगा, ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण तेरे ढंग नाल जीवां। अज तक मैं अपने ढंग नाल खांदा पींदा रहा, हुण जो कुछ तू कहना मैं उस तरीके नाल चला। हुण मैं अपना रहन सहन, अपनी तर्ज़े जिंदगी, ऐ गुरु, तेरे मुताबिक करांगा जो तू कहना है। इनू कहते हैं आत्म क्रांति, खुद नू बदलना। आत्म हत्या, सुसाइड करना, खुद नू खत्म करना। निराश हो गया, बिल्कुल उदास हो गया, हो सकता है सुसाइड कर लवे। सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, इस देश में सब तो ज़्यादा है। ये भी मैं अर्ज कर दें, आंकड़े जिहड़े मैं पढ़े ने, दिनवान एक मैगजीन है भारत दे च निकलती है, मंथली, वो आंकड़े पढ़ के मैं दंग रह गया। सब तो शक्ति संपन्न देश अमेरिका, पर बाकी मुल्कों के हिसाब नाल सब तो ज़्यादा सुसाइड करने वाले लोग इत्थे ने, खुदकशी इत्थे करते हैं, और सब तो ज़्यादा पागल भी इत्थे। गुस्ताखी माफ, क्षमा की याचना। आत्म क्रांति करेगा या आत्म हत्या करेगा या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाण की कोशिश करेगा, दिन रात शराब के नशे ही रहेगा, ड्रग्स खाएगा, अपने आप को भुलाएगा, चेते कुछ भी ना होए। क्यों? चेते आएगा तो निराश है, उदास है। उदासी किस तरह रवे? सब कुछ तो निराश है, किस तरह रवे? निराश होया मनुख, उदास होया मनुख, या तो आत्म क्रांति करेगा, खुद नू बदलेगा, या आत्म हत्या करेगा, खुद नू खत्म करेगा, या आत्म विस्मृति करेगा, खुद नू भुलाएगा। शब्द तो जिसनों चोट लगी है सत्संग दे, ये आत्म हत्या नहीं करेगा, ये आत्म विस्मृति भी नहीं करेगा, ये आत्म क्रांति करेगा। ऐ गुरु, अज तक मैं अपने ढंग नाल जीवदा रहा, हुण मैं तेरे ढंग नाल जीवांगा। अज तक जिसने इस तरह का फैसला नहीं किया, शब्द ने अजे चोट नहीं की उसनों। ये भी मैं अर्ज करते हैं। उदास ते निराश अपनी अकल तो होया है, या संसार तो चोट खा के होया है, तो सही फैसला करने की थां ते गलत फैसला भी कर सकता है। किसी किसी ने सही फैसला भी किया है, आत्म क्रांति में कल जिक्र करांगा, उन्हें खुद नू बदलिया है। लेकिन ऐसा भी आता है, खुद नू भुलाने की कोशिश करेगा, दिन रात नशे चूर, या सुसाइड करेगा, आत्म हत्या करेगा, खुदकशी करेगा। जिन्हें आत्म क्रांति की नहीं सोची, जिन्हें आत्म हत्या की नहीं सोची, जिन्हें आत्म विस्मृति की नहीं सोची, अजे इसनों चोट नहीं लगी, अजे ना निराश होया ना उदास होया। बाकी का खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा, समय की उलंघना ना करा। दरबार साहब दे आए हुए महान कीर्तनी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, रब्बी रस बनता है। आप समय सिर आया करो। ज्ञान
दासा